Hello students, welcome to National Children Higher Secondary School. I hope you all are doing well at home. My name is Nandini Sharma and today we are going to discuss about surface areas and volumes of some 3D objects. Now, what is surface area? The surface area of a solid object is the total area of the object's faces and curved surfaces. Means किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट के जितने भी फेसेस होते हैं सबके एरिया का सम होता है. द सम ऑफ the area of all the faces in the solid shapes, or we can say the surface area is the area that describes the material will be used to cover that solid. Means कितना मटेरियल उस ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सरफेस एरिया. What is volume? Volume is the space that a substance or shapes occupies or contains. Means किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो ये मेजर करता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है फ्लूइड होल्ड करने की. फ्लूइड मीन्स एयर और लिक्विड होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है और उसके अंदर कितनी स्पेस है. दिस कैन बी मेजर बाय इट्स वॉल्यूम. Now we will discuss about the surface areas and volumes of some 3D shapes. Cube. A cube is a three-dimensional figure with 6 faces in shape of the square. Cube एक 3D shape है जो बना होता है 6 equal faces से. So we are going to denote the side of the cube by the letter A. Now, lateral surface area of cube. What is lateral surface area? The area of 4 faces except the bottom or the top area, or we can say the area of the 4 walls will be 4a square. As you all know, the area of one face of a cube is a square. So for lateral surface area, the area of 4 faces of a cube will be 4 into a square. If we talk about the total surface area of a cube, students, you already know the area of one face of a cube is a square. So there are 6 faces in the cube. Then the total surface area of the cube will be 6 into a square. Next is volume. The volume of a cube means the length and the breadth, height of cube are equal, that is A. So the volume will be the product of its length, breadth and height. And 3 of them are equal, that is A. So the volume of the cube will be A into A into A is equals to A cube. We are taking an example. 3 equal cubes with each side 2 cm are placed side by side in a row. Find the volume of the new figure formed. So, in this question 3 क्यूब्स को हमने साइड बाय साइड प्लेस किया और जो नया फिगर बना है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है. लेट ए बी द एज ऑफ ईच क्यूब. ईच क्यूब की हमने जो एज या फिर साइड ली है दैट इज ए. यू नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, राइट? So the side is given, that is 2 cm. So the volume of the one cube will be 2 cube, that is 8. 2 into 2 into 2 is equals to 8. So the volume of each cube will be 8. So there are 3 cubes. The sum of the volumes of 3 cubes will be 3 into 8, that is 24 centimeter cube. Cuboid. Cuboid is three-dimensional figure with 6 faces. In cuboids,
opposite rectangles are equal. Now students, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3D फिगर है जिसके 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस में जो अपोजिट रेक्टेंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इट्स 3 डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2 into L plus B into height. Means 2 into L plus B is the perimeter of the rectangle, right? Then we multiply by the perimeter to height, it become the lateral surface area of cuboid. The total surface area of cuboid is 2 into LB plus 2 into BH plus 2 into HL. वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जितने भी क्यूबॉइड के फेसेस हैं उन सब का एरिया मिला के होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. Let's take an example. A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built with bricks whose dimensions are 24 centimeter, 10 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? So in this question, एक wall बनी है, ये वॉल क्यूबॉइड शेप में है, ये वॉल बनी है छोटे छोटे ब्रिक से और ईच ब्रिक का डायमेंशन आपको गिवन है. द लेंथ ऑफ दिस वॉल इज 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर. आप यहाँ देखेंगे कि जो ब्रिक्स के डायमेंशंस है डेट इज़ इन सेंटीमीटर यूनिट. तो आप देखेंगे ब्रिक्स के डायमेंशन सेंटीमीटर यूनिट में है, तो आपको वॉल के डायमेंशन भी सेंटीमीटर यूनिट में कन्वर्ट करने होंगे. सो लेंथ इज 10 मीटर, जब उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 1000 सेंटीमीटर. द ब्रेथ इज 24 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. The height is 4 meter is equals to 400 centimeter. So we are going to find the volume of this wall is equals to length into breadth into height. That is 1000 into 24 into 400. हम इसको solve नहीं करेंगे because further हमको इसे divide देना है. Now we are going to find the volume of each brick. Each brick is a cuboid with length 24 centimeter, breadth is equals to 12 centimeter and height is 8 centimeter. The volume of each brick is equals to length into breadth into height, right? Means 24 into 10 into 8. Now number of bricks निकालने के लिए हमको volume of wall डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक करना होगा. जब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक डिवाइड देगा वॉल्यूम ऑफ वॉल को, देन वी गॉट द नंबर ऑफ ब्रिक्स. सो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ईच ब्रिक्स दैट इज 24 इंटू 10 इंटू 8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गॉट द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज 500 ब्रिक्स. Cylinder. A right circular cylinder is a solid generated by the revolution of rectangle about one of its side. It is a folded rectangle with both circular ends. सिलेंडर क्या होता है? अगर आप एक रेक्टेंगल लेंगे और उस रेक्टेंगल को कर्व करेंगे, एज यू कैन सी इन द फिगर, उस एक रेक्टेंगल को जो हमने कर्व किया तो वो सिलेंडर की फॉर्म में बना. अगर हम सिलेंडर की फॉर्म में बनाने के बाद दो सर्कुलर एंड्स लेके उसके टॉप और बेस पर ऐड कर देंगे, इट विल बिकम सॉलिड सिलेंडर. सो द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 pi RH. The lateral and curved surface area both are equal, that is 2 pi RH.
Now the total surface area of the cylinder is 2 pi rh plus 2 pi r square. As you can see, 2 pi rh is the lateral surface area of the cylinder and the 2 pi r square is the top area and base area of the cylinder, because you know the area of the circle is pi r square, right? So in this shape cylinder में दो circular base होते हैं. So the area of these two circular base will be 2 pi r square. Now let's take 2 pi r as common. What's left in the bracket? 2 pi r in the bracket r plus h. So that is the total surface area of the cylinder. Now comes to the volume of the cylinder. Volume of the cylinder will be pi r square h. Now let's take an example. A measuring jar of 1 liter for measuring milk is of right circular cylinder shape. If the radius of the base is 5 cm, find the height of the jar. So as you can see in this figure, एक jar given है, that is in the form of cylinder, right? इसकी radius आपको given है 5 cm and इसकी capacity आपको given है, that is 1 liter. Now you have to find the height of this jar. Let h be its height. Volume of the cylinder, as you know, pi r square h, right? So the volume of this jar is given because the capacity of this jar is 1 liter. 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. तो 1 liter में होते हैं 1000 centimeter cube. आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आपको हाइट फाइंड करनी है. पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1000, हमने उसको वॉल्यूम के इक्वल रख दिया. हाइट विल बी 1000 अपॉन पाई आर स्क्वायर. या तो आप सबकी वैल्यू लिख दीजिए, वहाँ से हाइट निकाल लीजिए. हाइट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5 इंटू 5. ओके, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे. देन यू गॉट 140 अपॉन 11 सेंटीमीटर. 140 अपॉन 11 सेंटीमीटर, जब 11 140 को डिवाइड देगा, देन अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 12.73 एंड दैट इज द हाइट ऑफ दिस जार. Cone. If a right angle triangle is revolved about one of its sides containing a right angle, the solid thus formed is called a right circular cone. Means अगर आप एक right angle triangle लेंगे और उसकी वन साइड जो 90 डिग्री कंटेन कर रही है, उसकी वन साइड से उसको रिवॉल्व करेंगे, तो जो आपका सॉलिड बनेगा डेट इज़ राइट सर्कुलर कोन. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो आपकी कर्व्ड हाइट है उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है उसको हम हाइट बोलते हैं, और जो बेस है उसको हम रेडियस बोलते हैं. तो आप कोन में एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो आप यह 90 डिग्री के जो राइट एंगल में आप देख पा रहे हैं कि जो 90 डिग्री के सामने है स्लैंट हाइट, राइट, मीन्स द स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा. सो द स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. The lateral surface area and the curved surface area of cone is pi r l. The total surface area of the cone is equals to pi r l plus pi r square. तो आप देखेंगे कोन में एक बेस एरिया भी होता है जो सर्कुलर होता है, एंड द सर्कुलर बेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट. तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द बेस एरिया. हमको मिलेगा पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर. द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यू नो what is the volume of the cylinder? That is pi r square h, right. तो जो
कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है. सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. Okay, let's take an example. Total surface area of a cone is 770 centimeter square. If the slant height of cone is 4 times the radius of its base, then find the diameter of the base. So, total surface area of cone is given is equals to 770 centimeter square, right? What is the total surface area of the cone? That is pi r in the bracket r plus l. So in this question, relationship between the radius and the slant height is given. That is, if the slant height of a cone is 4 times the radius of its base, means जो slant height है वो radius की 4 times है, right? जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस की 4 टाइम्स है. तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको 4 का मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट में ना करके रेडियस में करना होता है. बिकॉज स्लैंट हाइट ऑलरेडी 4 टाइम्स है, इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 इन रेडियस. नाउ पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एल इज इक्वल्स टू 770. तो हम एल की जगह पर 4r रखेंगे. पाई आर इन द ब्रैकेट r प्लस 4r इज इक्वल्स टू 770. पाई इंटू 5r, r प्लस 4r इज इक्वल्स टू 5r, राइट? तो 5r और r में जब इंटू करेंगे इट विल बी 5r स्क्वायर. सो पाई 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 770. यहाँ से हम r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. r स्क्वायर विल बी 49 और वहाँ से स्क्वायर हटेगा, 49 पे रूट लगेगा एंड द आर रेडियस will be 7 centimeter. If the radius of this cone is 7 centimeter, then the diameter of this cone will be 14 centimeter, because the diameter is equals to 2 into radius. Because diameter जो होता है वो radius का डबल होता है. Radius is 7 and diameter will be 14. Sphere. The set of all points in 3-dimensional space lying the same distance the radius from a given point the center. Means अगर मैं स्फेयर पर कोई भी पॉइंट लेती हूँ ओके, उस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी और कोई अनदर पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी. मीन्स अगर मैं स्फेयर पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लेती हूँ तो उन सब पॉइंट्स की जो डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी. बिकॉज वही डिस्टेंस आपकी क्या होती है, रेडियस. तो रेडियस इक्वल रहती है. सो स्फेयर क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. एक 3D फिगर में आप सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो सेम होगी. द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. स्फेयर में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों इक्वल होता है, राइट? एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. Let's take an example. A right circular cone has 8 cm height and the radius of its base is 2 cm. The cone is melted and recast into a sphere. Determine the diameter of the sphere. So in this question, एक कोन है जिसकी हाइट एंड रेडियस गिवन है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. इस कोन को मेल्ट करके एक स्फेयर बनाया जाता है. मेल्टेड पोर्शन से एक स्फेयर बनाया जाता है, सॉलिड स्फेयर, और उस स्फेयर की आपको डायमीटर फाइंड करनी है, राइट? तो आप जब भी कोई सॉलिड को मेल्ट करते हैं और उस सॉलिड से एक नया सॉलिड बनता है तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है, दोनों की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो फ्लूइड होता है वो इक्वल होता है. क्योंकि हमने कोन को जब मेल्ट किया था तो जो लिक्विड था उसी लिक्विड से हमने स्फेयर बनाया है. So the volume of the cone will equal to the volume of the sphere. Okay, the volume of cone is equals to 1/3 pi r square h. तो हम क्या करेंगे, first we have to find the volume of the cone, that is 1/3 pi
2 स्क्वायर इंटू 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यहाँ पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी है बिकॉज हमको इक्वल में वॉल्यूम रखने हैं, तो जब हम इक्वल में वॉल्यूम रखते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखते। वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकला है 32/3 पाई, उसके इक्वल रख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। 32/3 पाई इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड करेगा 32 को, देन आर क्यूब विल बी 8, राइट। देन आर इज इक्वल्स टू द क्यूब रूट ऑफ 8 and the cube root of 8 is 2, right? So we got the radius of the sphere, that is 2 centimeter, and the radius is 2 centimeter. The diameter is 2 into 2, that is 4 centimeter. Hemisphere. A plane passing through the center of a sphere divides the sphere into 2 equal parts. Each part is known as hemisphere. Means अगर स्फेयर को बीच में से कट कर देते हैं तो स्फेयर जिन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है उस एक पार्ट को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और क्या लेंगे, उसका सर्कुलर बेस लेंगे, एज यू कैन सी इन द फिगर। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कुलर बेस एरिया डेट इज पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं, वी गॉट 3 पाई आर स्क्वायर। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ we are going to find the volume of hemisphere. The volume of hemisphere is equals to 1/2 into the volume of sphere. Means वॉल्यूम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ ही तो होगा, बिकॉज हमने स्फेयर को ही कट करके हेमिस्फेयर बनाया, राइट। सो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज 1/2 into 4/3 into पाई आर क्यूब, because the volume of sphere is equals to 4/3 pi r cube, right। उसको हाफ कर देंगे, then you got the volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube. Now let's take an example. Two hemispherical solid shapes are formed by cutting a spherical ball of diameter 28 centimeter from the center. Calculate the total surface area of the two hemisphere. Okay, so in this question एक spherical ball थी जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर था, उसको हमने सेंटर से कट किया और उसके 2 हेमिस्फेयर सॉलिड बना दिए। आपको उन 2 हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। So in this question diameter is given 28 centimeter. If the diameter is 28, then the radius will be 28/2, that is 14 centimeter. Because radius diameter की half होती है, diameter is 28 and radius will be 14 centimeter. Now the total surface area of hemisphere is equals to 3 pi r square, right। हम इस सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 into 22/7 into 14 into 14. Then the total surface area of one hemisphere will be 1848 centimeter square. तो आपको जो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का मिला है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बट इन द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर। आपको दोनों का निकालना है तो 2 का इंटू कर देंगे, 2 into 1848 इज इक्वल्स टू 3696
centimeter square. So the total surface area of the two hemisphere will be 3696 centimeter square. With this, we have completed this topic. I hope you all understood. If you are having any doubt, please ask in the comment section below. Don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you.